Hi everyone, today we are going to start a new chapter, that is algebraic manipulation. That is chapter number 6, exercise number 6.1. Here are the two topics and we will discuss the HCF and LCM. HCF means the highest common factor. So here the different algebraic expressions are given. We will factorize those algebraic expressions and then we will pick up the common factors from there. The product of that common factor is called HCF. So here guys, question number 1, find the HCF of the following. Find the HCF mean that highest common factor of the given expression we'll have to find, and how the highest common factors can be found. There is the basic step is whatever the expressions are given 2, 3, 4, we will factorize them according to the condition and then we will pick up the common factors from there, and at the end we'll take the product of those common factors. That product is called the HCF. मीन जो भी हमारे पास डिफरेंट एक्सप्रेशन दिए हैं हम उनको फैक्टराइज करेंगे और फिर उसका कॉमन फैक्टर्स पिक करेंगे और उन कॉमन फैक्टर्स के प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF. सो फर्स्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स हम फाइंड करेंगे. फैक्टर्स ऑफ 102 x y squares and z. 102, when we factorize this it will give us 2 5 times, 2 1 times, then 3 1 times, 3 9 times, 3 7 times, 21 sorry, and 17 1 times. 2 3 and 17, 2 3 17, then there is x, y is here 2 times, and then is here z. After that the second expression is 85. We'll make the factors of 85 x squares y z. 85 के फैक्टर्स हमारे पास क्या आ जाएंगे, 5 1 time 5, 3 carry, 5 7 times, 35 and 17 1 times. This is 5 into 17, and x how many times is here, that is 2 times, y is here, and then what is here, z. Okay, the next last one expression is 187. You make the factors of that. ठीक है, लास्ट एक्सप्रेशन के फैक्टर्स हम बनाएंगे 187 x y z स्क्वायर्स. 187 के जब हम फैक्टर्स बनाएंगे इट विल बी with the table of 2 notes, the table of 11 1 times, 11 7 times 77, and 17 1 times. 11 into 17 into x into y, and z how many times it has a square, तो हम इसको 2 दफा लिखेंगे. As I told you, for taking the highest common factor we have to make the common factors from here. ये सारे इसके फैक्टर्स हो गए, ये सारे इसके फैक्टर्स हो गए और ये सारे इसके फैक्टर्स हो गए. ठीक है, इसमें से हमने पिक करने हैं कॉमन फैक्टर्स. कॉमन मीन्स सेम. ठीक है, अब कॉमन इसमें पहला फैक्टर तो क्या है जी, 17 तीनों में मौजूद है. ठीक है, कॉमन मीन कि वो तीन एक्सप्रेशन है तो तीनों में वो कॉमन होना चाहिए, तीनों में सेम होना चाहिए. फर्स्ट 17, सेकंड है यहाँ पर x x x, that would be right. The third common factor is here y y and y. कॉमन में आपने उसको एक दफा ही लिखना है. Then the last factor is z z and z. यानी क्या कॉमन आ गया लास्ट में, z. ठीक है, अब प्रोडक्ट ऑफ दिस इज कॉल्ड द HCF. HCF प्रोडक्ट मीन जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे 17 मल्टीप्लाई बाय x y z, दैट इज 17 x y z. So this is the HCF of these three given expressions. Same like this we are going to solve its question number 2. Question number 2, here are the different algebraic expressions given. It has 5 parts. The 2 parts I will solve for you. The rest of you will try yourself.
we are going to solve. The part 1 is very simple. There are the two quadratic equations. You will do the midterm break over there, and after doing the midterm break, you can take the common factors. ठीक है? इसके पार्ट 2 में देखें हमारे पास तीन तरह के यहाँ पर डिफरेंट एक्सप्रेशन है. x क्यूब माइनस 27 दैट इज द फर्स्ट एक्सप्रेशन. सबसे पहले हम इसको फैक्टराइज करेंगे. ठीक है, यानी हमने फैक्टर्स बनाने हैं x क्यूब माइनस 27 के. x क्यूब किसका क्यूब है? x का. माइनस 27 इज द क्यूब ऑफ 3. So I am going to use here the formula of a cube minus b cube. ठीक है, a cube minus b cube. इसका क्या फार्मूला था? a minus b into a square plus ab and plus b square. a mean x, b mean 3. I will apply the formula x minus 3. a square mean x square plus ab mean x, b mean 3 plus b square mean 3 squares. X minus 3 I will write as it is. I will take the square of x, that is x square. x multiplied by 3, 3x. कोएफिशिएंट आप पहले लिख लेते हैं एंड 3 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 9. ठीक है, ये हमारे पास आ गई इसकी फैक्टराइज्ड फॉर्म. दीज टू आर द फैक्टर्स ऑफ दिस x क्यूब माइनस 27. ठीक है, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन हम इसको फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि 9 के फैक्टर्स बनेंगे 3 एंड 3. 3 एंड 3 को प्लस करने से भी 3 नहीं आता, माइनस करने से भी 3 नहीं आता. 9 और 1 को प्लस करने से भी 3 नहीं आता और माइनस करने से भी नहीं आता. इसका मतलब है इसकी हम मिड टर्म ब्रेक नहीं कर सकते. उसके बाद हम सेकंड पे आ जाएंगे. फैक्टर्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 27. ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल x है. देन हमारे पास x वाली टर्म है और एंड पे कांस्टेंट टर्म है. हम कांस्टेंट टर्म्स के पेयर बनाते थे जैसे 27 के. ठीक है, 27 के पेयर्स 1 टाइम्स 2 से नहीं होता, 3 9 टाइम्स 4 5 6 7 8 3 एंड 9. ये हमारे पास लास्ट फैक्टर बनता है. इनमें से हम कोई ऐसा पेयर पिक करेंगे जिसको प्लस माइनस करने से प्लस 6x आए और जिसको मल्टीप्लाई करने से माइनस 27. लेकिन फर्स्ट एंड लास्ट वाली आप उसी तरह लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 27. फर्स्ट एंड लास्ट टर्म आप ऐसे ही लिखेंगे. इस मिड टर्म ब्रेक का मतलब है कि अब मिडिल वाली टर्म की जगह कोई पेयर पिक करेंगे जिसको प्लस माइनस करने से प्लस 6 आए. 9 एंड 3 को अगर हम लें प्लस 9 माइनस 3, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, साइन ग्रेटर वैल्यू प्लस 6 आ गया. और जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 9 माइनस 3 प्लस माइनस माइनस 9 3 टाइम्स 27, तो मल्टीप्लाई करने से क्या आ गया? माइनस 27. इट मीन्स यहाँ पर पॉसिबल पेयर क्या होगा? प्लस 9x माइनस 3x. ये वेरिएबल लगाते हैं जो मिडिल वाली टर्म के साथ होता है, प्लस 9x minus 3x. Now in the next step we will make the pairs of these. ठीक है, आप क्या कर सकते हैं? इन दोनों में से फर्स्ट 2 पेयर बनाएंगे और इन दोनों में से कॉमन क्या गया? x, क्योंकि x दोनों में मौजूद है, दैट इज द कॉमन. यहाँ पर क्या रह गया? x. यहाँ पर x कॉमन चला गया, क्या रह गया? 9 माइनस 3 एंड 27. इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा? 3, क्योंकि 3 एंड 27 डिविजिबल है बाय 3. x minus minus plus 3, how many times? 27. 3 9 times. You can see both x plus 9 are here, that is common. जो हमने कॉमन ले लिया वो खत्म हो गया. हमारे पास क्या रह गया? x minus 3. These two are the factors of this expression. अब थर्ड एक्सप्रेशन हमने लेना है 2x square minus 18. उसके फैक्टर्स बनाएंगे. आप देख रहे हैं कि इन दोनों टर्म्स में हमारे पास 2 और 18 डिविजिबल है 2 के साथ. ये दोनों 2 से डिवाइड हो जाता है. हम 2 कॉमन ले लेंगे, अंदर हमारे पास रह जाएगा x स्क्वायर माइनस 2. हाउ मेनी टाइम्स 18? 2 9 टाइम्स 18. 2 इधर ही रखेंगे. अब यहाँ पर देखें x स्क्वायर किसका स्क्वायर है? x का. 9 किसका स्क्वायर है? 3 का. जैसे कि आपको पता है फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है a स्क्वायर minus b square, that is always equals to a plus b into a minus b. ये a square minus b square
2 इसी तरह लिखेंगे, a प्लस बी मीन x प्लस 3 एंड a माइनस बी मीन x माइनस 3। अब देखिए आपके पास तीनों एक्सप्रेशन के फैक्टर्स आ गए हैं, ये फर्स्ट एक्सप्रेशन के, ये सेकंड एक्सप्रेशन के फैक्टर्स और ये थर्ड एक्सप्रेशन के। हमने क्या बताया कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे लेते हैं, कॉमन, यानी इन तीनों के अंदर जो फैक्टर सेम है, ठीक है। तो हम पहले कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे। कॉमन फैक्टर्स हमारे पास यहाँ पर x माइनस 3, ये x माइनस 3 और ये तीनों सेम है, इसके अलावा कुछ भी तीनों में कॉमन नहीं है, तो यही हमारे पास क्या आ जाएगा, HCF आ जाएगा, दैट इज x माइनस 3, ठीक है। After that, one more part you will solve, then you will be able to get the concept more clearly. Okay guys, here you can see it's part number 5. Part number 5, here are the two expressions given. In the first expression, we will make the factors of this. 36, 3x raised to power 4 minus 9x squared and plus 8x. इसके फैक्टर्स सबसे पहले 36 के फैक्टर्स अब बनाएंगे, ठीक है। 36 के फैक्टर्स हमारे पास क्या हो सकते हैं, 218 टाइम्स, 2 9 टाइम्स, 3 2 टाइम्स एंड 3 2 टाइम्स, 3 भी हमारे पास 2 दफा आ गया। उसके बाद आप देखें कि ये जो ब्रैकेट के अंदर 3 टर्म्स हैं, इन तीनों टर्म्स में हमारे पास कॉमन क्या है, x रेज़ टू पावर 4, x स्क्वायर एंड x। तो x तीनों में मौजूद है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, x कॉमन ले लेंगे। सॉरी, there was x squared. I think so. I have written this question wrong. This is 3x raised to power 4 plus 5x cube minus 2x squared. Yes. Plus 5x cube minus 2x squared. Okay, I will make the correction over here as well. This is plus 5x cube minus 2x squared. आउटसाइड 36 था जी, ठीक है। अब देखिए कि इन तीनों में हमारे पास कॉमन क्या है, x स्क्वायर स्मॉलर, तीनों x की पावर्स में से वो हम कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर हमारे पास क्या रह गया, 3x स्क्वायर प्लस 5, क्योंकि x क्यूब में से x स्क्वायर कॉमन चला गया, x माइनस 2, क्योंकि यहाँ से भी x स्क्वायर क्या चला गया, कॉमन चला गया। अब जब हम इसको फैक्टराइज करेंगे, ये 2 हम इसी तरह लिखेंगे, 3 भी इसी तरह लिखेंगे। आप देख रहे हैं x स्क्वायर भी इसी तरह लिखेंगे कि ये हमारे पास अब बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसका हम मिड टर्म ब्रेक कर सकते हैं। मिड टर्म ब्रेक के लिए 2 3 टाइम्स क्या हो जाएगा, 6 के फैक्टर्स बनाएंगे, जिनको प्लस माइनस करने से प्लस 5 आए और जिनको मल्टीप्लाई करने से माइनस 2 3 टाइम्स 6 आए, माइनस 6 आए मल्टीप्लाई करने से और प्लस माइनस करने से प्लस 5 आए। तो 6 के हम ऐसे कौन से फैक्टर्स बना सकते हैं, आई थिंक सो 6 and 1, if I will write plus 6 minus 1 I will get plus 5, और जब हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 6 minus 1 को, तो हमारे पास माइनस 6 भी आ जाएगा, ठीक है। तो मैं फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म माइनस 2 ऐसे ही लिखूंगी, मिडिल वाली टर्म की जगह मैं लिखूंगी प्लस 6x माइनस 1x, 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है कोएफिशिएंट। जब इन दोनों को प्लस माइनस करेंगे, प्लस 6 माइनस 1 प्लस 5, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 6 आ जाएगा, ठीक है, जो कि हमें चाहिए था। अब देखिए 2 into 2, 3 into 3x square। अब इसमें से हमारे पास फर्स्ट 2 टर्म्स में से कॉमन क्या आएगा, 3 and 6 में से 3 कॉमन आएगा, और x भी इन दोनों के अंदर मौजूद है, x भी कॉमन आएगा, ये आ गया x प्लस 3 2 टाइम्स 6, यहाँ से कॉमन कुछ नहीं आएगा तो 1 x माइनस माइनस प्लस 2। यहाँ पे देखें इन दोनों में से कॉमन क्या आ गया हमारे पास, x प्लस 2, ये खत्म हो गया तो क्या रह गया 3x माइनस 1, ठीक है। ये हमारे पास आ गई फैक्टराइज फॉर्म, ठीक है। इसको आप 2 टाइम्स भी लिख सकते हैं, x स्क्वायर को x इंटू x भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास देखें सेकंड एक्सप्रेशन था, उसके हम फैक्टर्स बनाएंगे।
54 into that is 27 x raised to power 4 minus x. 54 के हम फैक्टर्स बनाएंगे. We'll do the prime factorization. 2 and 3 times. Then इन दोनों में से x कॉमन आ गया. अंदर क्या रह गया? 27x क्यूब, क्योंकि ये x रेज टू पावर 4 था, x कॉमन चला गया, x क्यूब रह गया माइनस ये x भी कॉमन चला गया, तो इसकी जगह क्या आएगा? 1 आएगा. अब ये इस तरह लिखेंगे 2 into 3 into 3 into 3 into x. इसको फैक्टराइज करेंगे. 27x क्यूब किसका क्यूब है? ये 3x का, क्योंकि 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 27 आता है, और 1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 1. दिस इज नाउ a क्यूब माइनस b क्यूब. a क्यूब माइनस b क्यूब का फार्मूला अभी जो हमने पीछे यूज किया, सेम फार्मूला हम यूज करेंगे. दैट इज a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर. a माइनस b मीन 3x माइनस 1, a स्क्वायर मीन 3x square plus ab. a mean 3x, b mean 1 plus b square mean 1 square. 2 into 3 into 3 into 3 into x. 3x minus 1. इसका स्क्वायर ओपन करेंगे 9x square. 3x मल्टीप्लाई बाय 1 3x and 1 times 1. इसको हम फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते, तो हमारे पास दो फैक्टर्स आ गए. एक ये फर्स्ट एक्सप्रेशन के, ये सेकंड एक्सप्रेशन के. हम देखेंगे कि इन दोनों में हमारे पास कॉमन फैक्टर्स क्या हैं. 2 then 3 again 3 then x then 3x minus 1. यहाँ पर हम लिखेंगे कॉमन फैक्टर सारे. 2 3 3x and 3x minus 1. तो HCF क्या आएगा? इन सब का प्रोडक्ट. 2 3 times 6, 6 3 times 18, ये x और 3x minus 1. ठीक है, तो ये हमारे पास इसका क्या आ गया? HCF. क्या? तो बेसिकली what are the steps to take the HCF, the highest common factor, that will make the factors of all the given expressions. And when we have made the factor, then we'll pick up the common factors from there, and the product of that common factor is called the HCF, the highest common factors.